تو ابھی اس کو چیک کر لیجیے. اور اگر ویڈیو بھی آف کر لیتے ہیں تو آسانی ہوگی. بہت سارے جگہوں پہ ابھی انٹرنیٹ ڈسٹرب ہے, تو آپ لوگ اپنے مائک کو بھی میوٹ کر لیجئے اور ویڈیو بھی آف کر لیجئے. یاسمین انصاری, ویوو, اور جن کا نام یہاں پہ اگر نام نہیں شو کر رہا ہے, ویوو 1807 یا اس طرح سے کچھ کیو سی کام, تو آپ لوگ نام اپنا ایڈٹ کر کے نام دے دیجیے, اس سے آسانی ہوگی. ویڈیو میوٹ کر لیے. ایک بار پھر سے ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس ٹیچ ان اردو کی جانب سے یہ ویبینار آج آرگنائز کیا گیا ہے. ہمارے ٹیم کے کچھ ممبرس یہاں پہ موجود ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے علاوہ باقی سارے جو اور ٹیچرس ہیں, کچھ اردو فیلڈ سے جڑے ہوئے بھی کچھ لوگ ہیں, وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. آج ہم یہ ہمارے اس ویبینار سیریز کا پہلا ویبینار ہے, پہلی گیدرنگ ہے ہماری اس طرح سے. اس گیدرنگ میں ہم, جیسا کہ میسج شیئر کیا گیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, چند باتیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں پہلے, کس طرح سے ہم ڈسکشن کو آگے لے جائیں گے اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے, یہ ساری چیزیں. ایک پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم سبھی واقف ہیں اس چیز سے کہ کووڈ-19 جب سے ہمارے بیچ ہے, تب سے ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں بہت چینجز آئے ہیں. اور خاص طور پہ جو میڈیا کے ذریعے بھی معلوم چلا ہے, اور ہم آپ جو فیلڈ میں ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں, تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اردو میڈیم اسکولز جتنے ہیں ان کے ساتھ چیلنجز کچھ دگنے ہو گئے ہیں, کیونکہ دوسرے جو میڈیم ہیں ان کے لیے تو وسائل موجود ہیں. ابھی جو ہماری ٹیچنگ اور لرننگ خاص طور پہ آن لائن ہو رہی ہے, تو دوسرے میڈیم جو ہیں ان کے لیے وہ مٹیریلز اور ریسورسز اویلیبل ہیں, لیکن اردو میڈیم کے لیے اس کی کمی محسوس کی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. تو ہم آپ لوگوں سے جو فیلڈ میں ہیں, جو خود ٹیچنگ کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو فیس کیا ہے ان چیلنجز کو, آپ سے ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. آپ اپنی بات کو کھل کر رکھیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر بنا پائیں, کچھ سجیشنز بھی لیں گے آپ کے فیڈ بیک کے طور پہ. اور میسج میں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا, ٹیچ ان اردو جو ویب سائٹ ہے, یہ ہماری ایک والنٹری کوشش ہے کہ ہم اردو میں پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ کے لیے مفید بنا سکتے ہیں. اس کی ایک کوشش جاری ہے, مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں اس کو. ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہمارے پاس ہو گیا ہے, اس کے استعمال کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو اب ہم پارٹیسپینٹس سے گزارش کریں گے کہ آپ جو یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں, جس رول میں بھی ہوں, یا تو وہ ٹیچر کے رول میں ہو سکتے ہیں یا ہیڈ ماسٹر کے رول میں ہو سکتے ہیں, یا پھر اردو میڈیم اسکول کے مینجمنٹ کے بھی ممبر ہو سکتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں, آپ بہت کم وقت میں ہم لوگ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ سے لیں گے. آپ اپنا نام, اپنے اسکول کا نام اور کس اسٹیٹ سے آپ بلانگ کر رہے ہیں, اس کو ایڈ کرتے ہوئے آپ لوگ ایک ایک کر کے اپنا انٹروڈکشن دے دیجیے. خورشید بھائی آپ کا تعارف ہو جائے سب سے پہلے. جی, میں خورشید عالم ہوں اور
मैं भी एक वॉलंटियर हूँ टीचिंग उर्दू में। हमारे साथ वो फ्राइड राइस वाला। चलिए हम अपने साथी से हमारे जो मौजूद हैं यहाँ पे टीचिंग, उससे हम शुरू करते हैं। वो अपना 3-4 साथी हमारे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर हम टीचर से इंट्रोडक्शन। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए जी। हम अपने साथियों से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मोमिन है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी एक वॉलंटियर हूँ इस प्लेटफॉर्म का। वैसे पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अलबत्ता उर्दू मीडियम से मेरा ताल्लुक़ रहने से मैं इस कोशिश से जुड़ा हूँ। जज़ाकल्लाह। हेलो हेलो जी मैं सैयद इरशाद सर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। जी, मैं ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन से मैं उसका एसएससी मेंबर हूँ। तो आपकी मीटिंग का जो मेन पॉइंट है सर, किस तरह से जो है ये कोविड के बाद में हमारे स्कूल तालीमी साल किस तरह आगाज हो, तो उसमें सबसे पहला मसला ये है सर। आवाज आ गई। हेलो हेलो जी बोलिए। जी 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 जी। तो हम ये चाह रहे थे सर कि गवर्नमेंट के जो हमको जो दी गई है हिदायत कि भाई जुलाई के अंदर स्कूल शुरू करना है, ऐसा जो उनका मकसद है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मुमकिन ही नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का जो पूरा हालात है अभी हमारे सामने जून के अंदर पूरे ओपन होने वाले हैं कि क्या हालात है। और अभी देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह से स्कूल के अंदर अभी 75 बच्चे जो एक ही दिन के अंदर अफेक्ट हो गए हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी स्कूल शुरू करे। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है तो वो थोड़ा सा एक उजलत वाला है। इरशाद और साहब, हम आपको रोकेंगे थोड़ी देर के जी लिए। सर जी सर जी सर। हमारा मुद्दा यहाँ पे ऐसा है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, ये हमारे डोमेन से बाहर का डिस्कशन है। हम जिस बात पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हमें स्कूल खोले बगैर अगर पढ़ाना हो तो हम किस तरह से उसको आसान कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या हमारे पेडागोजी से रिलेटेड, हमारे टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड, हमारे उर्दू के कंटेंट से रिलेटेड जो बातें होंगी उस पे हम बात करें। तो अभी पहले हम आपको थोड़ा रोक रहे हैं यहाँ पे। हम पहले बाकी जो टीचर्स यहाँ मौजूद हैं उनसे हम एक बार उनका इंट्रोडक्शन, उनका नाम, कहाँ से हैं, किस स्टेट से, ये जान लें, फिर हम इस पे आएंगे कि क्या क्या चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं शेख तैयब ज़िला बीड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैं एक ज़िला परिषद स्कूल में हेडमास्टर हूँ और ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। जज़ाकल्लाह। निघाला आहे जसे आमचे डॉक्टर, आरोग्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पोलिसांनी त्यांचा सन्मान करा, त्यांना पूर्ण सहयोग द्या, घ्या काळजी। हेलो जी हाँ, अभी हमारे तैयब सर थे, हमारे ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के मेंबर भी है। मैं भी सैयद इरशाद अली हैदराबाद से हूँ। मैं मलिक अंबर स्कूल के अंदर जो है तदरीस करता हूँ। जी सर। जी हाँ, दूसरे जो हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान वहीद हूँ, हैदराबाद कैंपस में सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ और टीचिंग उर्दू का वॉलंटियर हूँ। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन अल्फिया हूँ, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ है मेरा, महाराष्ट्र ज़िले से, और मैं रईस जूनियर कॉलेज में इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलामुअलैकुम। लगा लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं शबाना यूसुफ शेख, मैं बॉम्बे से हूँ और मैं अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल में दर्ज तदरीस के फराइज अंजाम देती हूँ और 17 साल से मैं यहाँ दर्स से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस ग्रुप में शामिल होकर और मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार से हमें जरूर हमारे मसले का हल मिल जाएगा और हम भी चाहते हैं कि जो आपका उर्दू ग्रुप है जिसमें आप लिंक और वेबसाइट वगैरह की डिटेल भेजते हो, प्लीज हमें उसमें ऐड कीजिए। शुक्रिया। हेलो, हेलो हेलो सबिया, आओ बात कर इधर आओ। वो देखो जो है इस पे दाढ़ी वाली साहब है कोई। हेलो, हाँ इधर में आओ। जी बोलिए। अभी बंद कर दिया उन्हें खुर्शीद। हेलो हेलो हेलो, हाँ एक मिनट। ये अंजुमन का रिकॉर्डिंग है ना? हेलो, हाँ जी, अंजुमन सैफ तैयब जी, बॉम्बे। हाँ आ रही सर आवाज, बोलिए आप। हेलो, सबका वीडियो स्टॉप। अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी से हम बोल रहे हैं। तुम्हारा दिखने का कहाँ देने हाँ तुम्हारा वीडियो दिखने का क्या? दिखने का तुम दिखेंगे। सर हमने वीडियो हटा दिया है, हम वॉइस पे बात करेंगे, वीडियो हमने ऑफ कर दिया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी आवाज आ रही है? डिसेबल आपका डिसेबल है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरा मशवरा है थोड़ा वक्त जाएगा, हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना मैडम। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा वक्त जाएगा, मेरा मशवरा है कि हम सीधा मुद्दे की बात की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन जिनका तुमने कनेक्ट नहीं करे। जी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें और जिनका इंट्रोडक्शन अभी बच गया है, नहीं हो पाया है, वो टेक्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दें, हम उसको देख लेते हैं। और हमारा जो पहला एजेंडा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर से हम क्लियर कर दें कि स्कूल्स अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमलाइन से वो खुलेंगे और स्कूलों का जो जिस तरह से सेटअप है हमारा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं किसी स्टेट में हाई स्कूल को पहले खोला जाए, उसके बाद फिर मिडिल और प्राइमरी स्कूल में हम आते हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेटअप हो सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है जिस पे हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर स्कूल बंद रह रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, जिसकी वजह से उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी रुकावट आने वाली है। तो हम जो उर्दू मीडियम से जो जुड़े हुए जितने टीचर्स हैं, मैनेजमेंट, जो उर्दू मीडियम की मैनेजमेंट है, वो इसको किस तरह से मैनेज करने के आप अभी तक जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें आप किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे ले जा रहे थे? अगर कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स के साथ आप बताएं, बहुत मुख्तसर, और फिर आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए
اس کو اوورکم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ اگر مختصر آپ اپنی بات رکھیں گے تو دوسرے پارٹیسپینٹس کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب ہم السلام علیکم. جی میں شیخ طیب بول رہا ہوں. میں دیہات میں سروس کرتا ہوں سر. یہاں پر میں نے تجربہ کیا ہے کہ میں 2 سال سے میری کلاس کے طلباء کا ایک واٹس ایپ گروپ میں نے فارم کیا ہوں اور وقتاً فوقتاً میں اس میں تعلیمی مواد سینڈ کیا کرتا ہوں. اب لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں تو اس سے بہت زیادہ استفادہ بچوں نے کیا ہے اور ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے حالات کا کہ اس طرح کے آن لائن مواد مٹیریل جو ہے تو بچوں کو پرووائڈ کیا جائے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام بچوں کے پاس وہ وسائل مہیا نہیں ہوتے، اینڈرائڈ فون ہو، انٹرنیٹ کی سہولت ہو، تو ساری چیزیں. تو ایک گھر میں کئی بچے اگر ہوں تو وہ تمام وہ مسائل اور زیادہ پیچیدہ بن جاتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس یہ وسائل ہوں تو ضرور اسے استفادہ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر میرا یہ تجربہ ہے کہ تقریباً 40 سے 50% بچوں کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے متبادل کیا ہو آن لائن کے علاوہ. آن لائن تو مواد اگر تیار ہو تو ہم ان سے استفادہ کروا سکتے ہیں بچوں سے، لیکن کسی وجہ سے اگر بچے آن لائن سے استفادہ نہ کر سکے ہوں تو ہمارے پاس کیا متبادل ہو اس کے لیے. تو میری ایک رائے ہے کہ میں نے اس پہ کوشش بھی کی ہے. جی طیب صاحب آپ بول رہے تھے، آواز نہیں آ رہی ہے. جی بولیے. جی 2 منٹ میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو وہ پچھلے جو ان کی درسی کتاب ہے گزشتہ سال کی جو درسی کتب ہے، اس میں جو مشقیں بچوں کی رہ گئی تھی کسی وجہ سے، انکمپلیٹ جو ایکسرسائزز ہیں بچوں کی میتھ کی، سائنس کی، دیگر مضامین کی، تو وہ کمپلیٹ کرانے کی طرف توجہ دیں. فی الحال تو یہ ایک متبادل نظر آتا ہے جب تک ان کوچنگ کلاسز، کیونکہ یہ پرماننٹ ٹائم نہیں ہے، پرماننٹ ایسا نہیں ہے لاک ڈاؤن کا، 2-3 مہینوں کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ جو ہونے والا ہے ہمارا آفٹر کووڈ، پوسٹ کووڈ-19 جو چیلنجز ہیں ہمارے، اس پر ہم کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو مسائل آنے والے ہیں یہ 2-3 مہینے کا ہے، ہم اس پر زیادہ اپنے زبان آپ کی آواز بیچ میں کٹ جا رہی ہے. آپ کنٹینویشن آپ بول رہے ہیں یا خاموش ہیں؟ ابھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. تعلیم پر مینجمنٹ. ہلو السلام علیکم. ہلو جی ارشاد صاحب. جی السلام علیکم سر. میں ارشاد سر بول رہا ہوں اورنگ آباد سے. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے بڑے شہروں کے اندر جو ہے آن لائن تعلیم کا سلسلہ تو جاری ہے الحمدللہ، لیکن بہت سارے جگہوں پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے 4 بچے الگ الگ کلاس میں ہیں تو ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایسا مشورہ دیا ہے سرپرست کو کہ بھئی آپ جو ہے اپنے نگرانی میں جو جیسے طیب صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی جیسے کچھ مشق جو رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کرائیں سرپرست کی نگرانی میں. یا پھر بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ پڑھا لکھا ماحول ہونے کی وجہ سے ان کے بڑے بہن بھائی جو ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے الحمدللہ وہ جو مشق رہ گئی تھی اس کو مکمل کرا رہے ہیں، لیکن آنے والے نئے تعلیمی سال کی کتابیں ابھی تک بچوں کے پاس نہیں ہیں. اس لیے کچھ لوگوں نے آن لائن کتابیں تو اپنی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، لیکن بہت سارے مسائل یہ ہے کہ سلیبس کہاں سے رہے گا، کتنا سلیبس اس میں سے کٹ ہوگا. ابھی یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس سال آنے والے سال میں کچھ سلیبس کو کم کریں گے. تو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ شروع کے جو اسباق ہے بچے اس کو جو ہے اپنے طور سے مکمل کریں. جیسے اردو ہے تو اردو کے اندر اسباق کو پڑھیں، نظمیں یاد کریں، مشکل الفاظ اپنے طور سے نکالیں. یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے کے لیے سرپرست کو رہنمائی کی جا رہی ہے. لیکن جو غریب طبقہ ہے ان کے پاس میں فون وغیرہ اویلیبل نہیں ہے، یا پھر نیٹ کی سہولت آج جو ہے پیسے کا جو مسئلہ ہے کہ وہ ریچارج نہیں ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیسا کرنا چاہیے، بہت ساری مشکلات آ رہی ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آن لائن تعلیم دینے سے بہت سارے مسائل ہو گئے نہیں ہیں، لیکن مسائل تو درپیش آ ہی رہے ہیں. تو ہم کو یہاں پر اس بات پہ غور کرنا ہے
کہ آنے والے مسائل کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں کہ ہر بچے کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ضرور آنے نئے تعلیمی سال کے اس کے پاس میں جو ہے کچھ وسائل موجود ہو جو پڑھ سکے. ایسا میرا مشورہ ہے, تو ہم اس کے اوپر زیادہ غور کریں گے. آپ لوگ جو اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے ہیں اس میں اگر کس طرح سے آپ نے ابھی تک لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کس طرح سے آپ نے اپنی ریچ اسٹوڈنٹس تک بنائی, یا پھر کچھ اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کس طرح سے آپ نے سکسیس حاصل کی, اس کے بارے میں بھی کچھ ایگزامپلس رکھ سکتے ہیں. جس میں 7th کلاس ٹیچر ہوں سر, تو میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا بچوں کا. تو اس واٹس ایپ گروپ پہ ہم کچھ جو بچوں کو رہنمائی دے رہے ہیں, سرپرست کو ہدایت دے رہے ہیں, اور کچھ بچے بھی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر جو ہے ہم اس مشق کو کیسے کریں. جیسے میں نے پھر کیا کیا, ہمارے جو دیگر سبجیکٹ ٹیچرس ہیں ان کو بھی واٹس ایپ گروپ کے اندر میں نے شامل کر لیا ہوں سب. تو وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے ہر ٹیچر ایک دن میں اپنا کچھ مختصر سا کام بچوں کو دے رہا ہے, اور بچے جو ہے اس کرنے کے بعد میں اس کی تصاویر جو ہے ہم کو بھیج رہے ہیں, یا کچھ بچے ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں سر. تو لیکن ہو یہ رہا ہے کہ 20% بچے اس کو کر پا رہے ہیں, 80% بچے جو ہے نہیں کر رہے ہیں سر. یہ بھی ہم کو مسئلہ آ رہا ہے سر. دیگر ٹیچر جیسے میتھس کے ہے اور اسی طرح سائنس کے ٹیچر ہے, تو وہ کچھ اپنے طور سے سوالات دے رہے ہیں کہ آپ یہ اس میں ڈھونڈ کے کریے, یہ اس کو حل کر کے بتائیے. تو 20% بچے کر پا رہے ہیں سر. یہ ابھی تک میرا تجربہ رہا ہے سر. جی جی ٹھیک ہے. دوسرے ٹیچرز آپ. جی سر, شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہلو. جی عامر صاحب. جی السلام علیکم سر, میں ممبئی سے بول رہا ہوں, اور ہمارا اسکول جو ہے وہ جوگیشوری میں ہے ممبئی میں. اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو نئے ورک لوڈ جو ہے وہ ٹیچرز کو الاٹ کیا ہے کہ کون کون سے ٹیچر کون سے سبجیکٹس کون سے کلاس میں لے گا نئے اکیڈمک ایئر کے حساب سے. دوسری بات یہ کہ ہم نے کلاس کو جو پروموٹ کیا تھا, ان سارے بچوں کے فون نمبرز ہمارے پاس آلریڈی تھے, تو ہم نے اپنے جو ہے 40 کا گروپ جو ہے وہ بنا کر ٹیچرز کو رسپانسبلٹی دی کہ وہ باقاعدہ 10 سوالات کا کوشچنئر ہم نے ٹیچرز کو دیا تھا کہ 10 کوشچن آپ فون کر کے ہر بچے سے والدین سے پوچھیں, جس میں ان کی پوری تفصیلات جو ہے کہ کووڈ پیشنٹ کوئی ہے گھر میں, گھریلو حالات کیا ہے, موبائل فون اویلیبل ہے, انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, کتنے فون ہیں, اسمارٹ ٹی وی اگر ہے تو, اور ایک گھر میں ایک ہی اسکول میں, ہمارے اسکول میں 3 بچے 4 بچے جاتے. تو ایسے کر کے 8-10 سوالات کا رسپانس ابھی ہم نے جمع کیا ہے, اور اس کے حساب سے ہم لوگ اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ فریم کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی گھر کے تقریباً 3 بچے 4 بچے اگر ہے تو ہم لوگوں نے ابھی 1.5 گھنٹے کی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی 3 کلاس, ایک ہی کلاس کے لیے 3 لیکچر ڈیزائن کیا ہے. جیسے 6 اور 7 جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم چلے گی, اس وقت جو ہے وہ 5ویں 6ٹھی 5ویں اور 8ویں 9ویں 10ویں نہیں چلے گی. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ واٹس ایپ پہ ہی چلے گا, یا ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہے وہ زوم یا گوگل میٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں, جن کے پاس بھی ٹیکنالوجی بچوں اور ٹیچر کے پاس ہے. تو تقریباً 40 سے 50% بچے ابھی تک کانٹیکٹ میں آئے ہوئے ہیں, اور میرے خیال سے پرابلم جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹیچرز کو ہی ہو رہا ہے. ہم لوگ ابھی تک ٹیکنالوجی سے فیملیئر اپنے آپ کو نہیں کر پائے میرے خیال سے. تو اگر ہم ٹیچرز کی ٹریننگ سائملٹینیسلی چلے, جیسے ہم لوگ جو ہے روزانہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے 1-1 گھنٹے کے سیشن بھی لے رہے کہ کون کون سے آپشن ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر ٹیچرز اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے فیملیئر کرے. اب رہی بات یہ کہ بہت سارے بچوں کے پاس نہیں ہے فون, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے ایریا جو ایڈریس ہے ہمارے بچوں کا, جہاں پر فون یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو وہاں ہم لوگوں نے ان بچوں کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان بچوں کے پاس انٹرنیٹ یا آن لائن فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پر قریب میں اگر کسی اور اسکول کا کوئی ٹیچر یا کوئی ٹیوشن ٹیچر ہے, اس طرح کے کوئی پڑھا لکھا شخص جو والنٹری پڑھانا چاہتا ہے کچھ چیزیں, تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ گھر میں یا اور کسی طرح سے کچھ انتظام ہو سکتا ہے ان کو بتانے کا سمجھانے کا, تو وہ بھی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور تیسرا جو میرا مشورہ تھا وہ یہ کہ اگر ہم لوگ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ جون جولائی اگست سپٹمبر یہ 4 مہینے کا سلیبس آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں منیمم, اور اس کو ڈسپلے کر دیں کہ 5th 6th 7th 8th یا 1st to 8th یا 1st to 10th
इतना इतना सिलेबस जो है वो मेरे ख्याल से करना है आप सभी टीचर्स को या स्टेट लेवल पे, तो हमारे लिए आसानी रहेगी टीचर्स को अपना काम मुकम्मल करने के लिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शरीफ खान जानला से बोल रहा हूँ। एक मिनट अहमद साहब, एक मिनट। शरीफ खान, वो बच्चे का मोबाइल है मेरा। अच्छा अच्छा जी, शरीफ साहब जी बोलो। मैं एक मिनट, हम कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें ऐड करना चाह रहे थे यहाँ पे। अगर हम कैटेगराइज करें बच्चों के पार्टिसिपेशन को, तो इसमें जैसे एक साहब ने कहा कि 20% तक ही हमारी रीच हो पा रही है, और अभी कहा गया कि 40% तक रीच हो पा रही है, फिर भी मैक्सिमम जो है हमारी रीच नहीं है। ये हम सभी लोग इसका इकरार कर रहे हैं। अभी तक जो बात हो रही थी उसमें वसाइल या फिर किस तरह से हम कम्युनिकेट कर पाए बच्चों को, और उसके मोड्स पे बात हो रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर हम किसी पड़ोसी की मदद से, किसी दूसरे लोगों की मदद से हम कैसे उन तक रीच बना पाए। आप लोग अब जो आगे बात रखेंगे अपनी, उसमें कोशिश ये करें कि जो लिटरेचर है, जो हमारे उर्दू से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसका आपने किस तरह से इस्तेमाल किया, या फिर अवेलेबिलिटी आपको कैसी लग रही है। जैसे ऑनलाइन अगर हम जाते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में, दीगर लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं लोग उस पर काम किया गया है। उर्दू की जब हम बात करते हैं तो उर्दू में एक तो हार्ड कॉपी मौजूद है बच्चों के पास किताबें, उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं, वीडियोस हो सकते हैं या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो सकते हैं, इसका एक्सेस आप कहाँ से कर रहे हैं? क्या इसकी कमी आपको लग रही है, या फिर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपने उसका इस्तेमाल किया हो? ये सब भी अपनी बातों में आप रखें। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, जो उर्दू अदारा जो औरंगाबाद में चल रहा है, इसका डाइट का, इरशाद साहब आप अभी एक मैसेज में बोल रहा हूँ सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है पूरी वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं सर साइट पर, उर्दू मवाद की सर, नज़में वगैरह, अज़बाक। जी सर। जी ठीक है सर, बोल दिया मैं कि यहाँ उर्दू जो शोबा है उससे अवेलेबल हो रहा है सर। ओके। शरीफ साहब बोल रहे थे, आप जरा कंटिन्यू कर सकते हैं। शरीफ साहब, आवाज आ रही है? शायद कुछ नेटवर्क इशू है इनके साथ। दूसरे चैट बॉक्स में कोई बता रहे थे कि नीलम गजाला की जानिब से कि वो लॉकडाउन में उन्होंने कैसे क्लासेस मैनेज की हैं। हाँ, तो आई थिंक वो बात कर सकती हैं। जी नीलम मैडम, आप बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? वालेकुम सलाम। जी आ रही है, आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का भी शुक्र कि आप लोगों ने वक्त की इस ज़रूरत को महसूस किया कि उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात के इस लॉकडाउन में या इसके आगे भी इनके तालीमी सिलसिले को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो सबको बोलना है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसरन यहाँ पे आपको बताऊंगी। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। तो लॉकडाउन से 15 दिन पहले हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्कूल्स बंद कर दिए थे। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है और इस तरह का लॉकडाउन होगा, कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था। तो जैसे मैंने सुना कि स्कूल्स बंद कर दिए गए, तो हमने 15 मार्च से उन्होंने बंद किया था ममता बनर्जी ने, लेकिन हमने एक दिन स्कूल और खोला और 16 मार्च को पूरा काम करके 16 मार्च को हम लोगों ने ये किया कि जितने हमारे क्लासेस हैं, सारे क्लासेस का हमने उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से काफ़ी बेहतर काम हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप में सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं ग्रुप में, और हमको बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर लेने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि एडमिशन के वक्त जनवरी में ही हमारा ये सिस्टम है कि हम एडमिशन जब लेते हैं तो रजिस्टर में सारे बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है।
تو کچھ اسکول بند ہونے کے بعد بھی اگر کسی کلاس کا گروپ نہیں بن پایا تھا تو اسکول کو کھلوا کے ہم نے رجسٹر نکال کے گروپ بنوایا، اور الحمدللہ سارے ٹیچرز جو ہیں میل اینڈ فیمیل انہوں نے گروپ بنایا اور بہت اچھے سے پڑھائی ہو رہی ہے۔ پڑھائی ہو رہی ہے کہ آج کل کا کوئی بھی بچہ موبائل سے غافل نہیں ہے اور موبائل کی ٹیکنالوجی سے ناواقف نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ گروپ پہ پڑھائی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہوتی ہے، ایک محدود حد تک ہی ہو سکتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ادر اسکولس میں ہو رہے ہیں کہ ہم زوم پہ کلاس لیں یا گوگل میٹ پہ ہم کلاس لیں، تو زوم پہ کلاس لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ٹیچر سے میٹنگ ہماری چل رہی ہے زوم پہ، لیکن ابھی ہمارے بچوں کے ساتھ ابھی زوم پہ کلاس شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سائنس ٹیچر ہیں الحمدللہ سائنس اور میتھس وہ لیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی جو ہیں وہ تکنیکی اعتبار سے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے باضابطہ سائنس کا، فزکس کا اور میتھس کا ویڈیو بنا کے اپنے گروپ میں اپلوڈ کیا، تو سائنس اور میتھس کا بالکل سینئر کلاسز کا 9 اور 10 کا الگ ہم نے گروپ بنایا، اور اس میں سائنس کی پڑھائی سب سے بہتر پڑھائی جو ہوئی ہے وہ سائنس کی ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے مینج کیا، اور الحمدللہ ہم اپنے اسکول میں ہمارے یہاں یہ ریکگنائزڈ ہے ویسٹ بنگال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سے، بٹ ان ایڈیڈ ہے، تو اس میں ہم لوگ دینیات ایک پیپر ہمارا چلتا ہے اور قرآن ایک پیپر چلتا ہے، تو قرآن کے کلاسز بھی الحمدللہ شروع ہو چکے تھے 15 رمضان سے، اور وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے 70% بچوں نے استفادہ کیا۔ گروپ میں پڑھائی ہوتی ہے اور ہم نے یہ رول بنایا ہے کہ بچے پورا اس کو میری نگرانی میں ہو رہا ہے اور ہم ہی اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ہوم ورک ٹیچرز کے پرسنل میں بھیجتے ہیں، یہ تو گروپ بہت زیادہ برڈنڈ ہو جائے گا، بہت زیادہ گروپ پہ لوڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور پروجیکٹ ہے یہاں پہ ویسٹ بنگال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں 10 نمبر کا پروجیکٹ بھی ہم نے لاسٹ ڈے ٹیچرز کو یہ آرڈر دیا تھا کہ ٹیچرز پروجیکٹ دے دیں، تو اس لاک ڈاؤن میں بچوں نے 10 نمبر کا پروجیکٹ بھی کر لیا ہے، پڑھائی چل رہی ہے، لیکن اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ایز اے پرنسپل اور ایک قوم کی، ایک ملت کی ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے میں آپ سبوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ اردو میڈیم والے اسکول کا بھی ایک ایسا ویب سائٹ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے گھر میں جتنے ظاہر سی بات ہے جتنے بچے ہیں، جتنے ریلیٹیوز ہیں، سب بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ سارے بچے جو ہیں ان کے بھی آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، تو ہم نے سب کے آن لائن کلاسز کا جائزہ لیا، تو سارے اسکولز جو ہیں وہ ایک ایپ جو ہے بچوں کو ریفر کر دے رہے ہیں، کچھ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اور کچھ بقیہ جو معلومات ہے وہ بچے ایپ سے پڑھ لے رہے ہیں۔ جیسے بچوں کو کوئی بھی ٹاپک پڑھنا ہے، میٹر ہیز اے ویٹ یا ایئر ہیز پریشر، ایئر ہیز ویٹ، یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو یہ ٹیچرز تو سمجھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم سمجھا پا رہے ہیں، اور آن لائن جو کلاسز ہوں گی اس میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو لائیو کلاسز میں ہوتی، لیکن سارے ٹیچرز نے، سارے اسکولز نے وہ ایپ پرووائڈ کر دیا ہے، اس ایپ سے بچے ساری انفارمیشن لے رہے ہیں، اور پراپر وے میں ہوم ورک سیٹ کیا ہوا بچوں کے پاس آ رہا ہے، اور بچے ہوم ورک کر کے پرسنلی کلاس ٹیچر کو یا سبجیکٹ ٹیچر کو بھیج رہے ہیں۔ تو ابھی وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اردو میڈیم والوں کا بھی ایسا ویب سائٹ تیار ہو، ایسا ایپ تیار ہو جس میں ہر سبجیکٹ کا، صرف اردو کی نظموں کا اور اردو کی غزلوں کا نہیں، ہر سبجیکٹ کا کم سے کم کلاس 10 تک کے لیے ہر سبجیکٹ کا، کہ جتنے کلاس کا پورا سلیبس ہے کلاس وائز، ٹاپک وائز اس میں پڑھایا ہوا ویڈیو ہو، اور اس ویڈیو کے پڑھانے کے بعد اس کا کوشچنائر بھی ہو، اس میں بالکل اپلوڈڈ ہو۔ کوئی بچہ اگر اسکول سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے تو وہ کسی بھی وقت چاہے تو وہ ٹاپک نکال کے اس میں سے وہ پڑھ لے، سمجھ لے، اور وہ کوشچنائرز کو سالو کر کے اپنی ٹیچر کو بھیج دے۔ تو اس طرح کی فیسلٹی، اس طرح کی سہولت اردو میڈیم والوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم سبوں کو مل کے اس کے اوپر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ ایک کلک پہ اردو کا ویب سائٹ کھل جائے، اس میں سارے سبجیکٹس کے جو نارمل ٹاپکس ہیں ہر سبجیکٹ کے وہ اس میں سالو کیے ہوئے ہوں، جو ہمارے پورے ہندوستان کے جو بہترین اساتذہ کرام ہیں وہ پڑھائیں، اور پڑھا کے اس میں ڈال دیں ویڈیو اپنا، اور اس سے ریلیٹڈ، اس سے منسلک کوشچن، سوالات بھی ہوں، سوال نامہ بھی ہو، اور سوال بچے حل کر سکے، تو یہ بہت بڑی سہولت ہو جائے گی پورے اردوداں طبقے کے لیے، اور یہ صرف لاک ڈاؤن کے لیے نہیں ہوگا، یہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہمارے بچوں کو بہت کام میں آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہمارے بچے 10 اور 9 10 کا بچہ ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے یا بایو پڑھ رہا ہے، اگر اس کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، یہ کلاس اس کا ایبسنٹ ہو گیا، وہ آرام سے یوٹیوب میں نکال کے پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، دوسرے دن آنسر لکھ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سہولت اردو میڈیم میں بھی ہونی چاہیے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، بہت سے لوگوں کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، اب آپ لوگوں کی بات بھی مجھے سننی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب مجھے آپ سائلنٹ کر دیں۔ جی نیلم میڈم، آپ نے بہت ساری باتیں یہاں پہ
रखी हैं। इसमें मैं फिर से एक बार रेफर करना चाहूँगा कि जो हमारा कंटेंट है उर्दू का, उस पर आप लोग बात नहीं रख रहे हैं, उस पर हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि उस पर कुछ बात कीजिए। और जहाँ तक ये वेबसाइट और ऐप की बात है कि ऐसा एक ऐप होना चाहिए, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे मटेरियल, तो हमारी कोशिश भी यही रही है टीचिंग उर्दू की कि उसका एक कलेक्शन हम यहाँ पे फराहम कर पाए, क्योंकि जो चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐप और वेबसाइट, ये अपने आप में एक बहुत डिमांडिंग चीज़ है। इसके लिए अलग तरह की टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत होती है, और शायद सारे स्कूल इतने एबल्ड नहीं होते हैं कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ। बहरहाल, तो मैसेज जो हमने कन्वे किया था आप लोगों को, उस मैसेज में टीचिंग उर्दू वेबसाइट का भी रेफरेंस था। तो आप में से अगर किसी ने इस वेबसाइट को देखा है या इस वेबसाइट से कभी कोई फ़ायदा उठाया है, या फिर आपको अगर ये लगता है कि इस वेबसाइट में जो चीज़ें मौजूद हैं वो बहुत इनसफिशिएंट हैं, या फिर उससे मदद नहीं मिल पा रही है, या इसके और भी दीगर चैलेंजेस हैं, इस पे आप लोग अपनी बात रखें, आप में से जिन्होंने भी इस वेबसाइट को देखा है। जी, ये कुछ हैंड रेज है, तो मैं मतलब कि नाम कर खलील अहमद साहब की बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी वालेकुम सलाम, जी पहुंच रही। जी, मैं कर्नाटका बीदर से हूं। तो यहाँ पे आपने वसाइल के बारे में बात की। एक बात है, मैं भी अपने खुद यहाँ पे पीपीटी तैयार करता हूँ, या दूसरे वसाइल जो भी हैं, यहाँ पीडीएफ फॉर्म में हो, वर्ड फॉर्म में हो, जो भी यहाँ पे मेरे वसाइल हैं पूरे कर्नाटक में यहाँ पे चलते रहते हैं। लेकिन एक बात है, जब भी हम किसी महाराष्ट्र, अपने करीबी महाराष्ट्र या आंध्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो वहाँ हमें शामिल नहीं किया जाता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं, वसाइल हैं, जो भी हैं, पूरे इंडिया में एक सिलेबस चल रहा है सीबीएसई का, तो उसके मुताबिक अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लें या कोई दूसरा जो भी है, यहाँ पे अपने वसाइल एक्सचेंज कर सकें, अपने कन्वर्सेशन कर सकें, अपने ख्यालात जो भी हैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, ऐसी कोई एक तदबीर है आपकी तरफ से, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से। शुक्रिया सर। शबाना यूसुफ, आपने हैंड रेज कर रखा है, तो आप बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, आ रही है। देखिए, मैं अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल में बॉम्बे से हूँ, और ये हमारा अंजुमन इस्लाम का अदारा तकरीबन 150 साल से अपना ये काम अंजाम दे रहा है, और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी और हमारी प्रिंसिपल मोहतरमा शमा तारापुरवाला, हम लोग जो है वो जैसे ही हमारे बच्चे, हम अब एडवांस में बच्चों के 9 के एग्जाम से लेते हैं, और उसी से 2 हफ्ते बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये जूम वगैरह तो हमारी कारवा मैडम जो थी उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, और काफी हमारी पढ़ाई हो चुकी है। और प्लस बात ये है कि हमारा अंजुमन इस्लाम जो है इस लॉकडाउन में हम टीचर्स को वेबिनार से जोड़े रखा है। आज हमारा वेबिनार का 5वां दिन खत्म हुआ। इसमें हमने एक नई चीज सीखी है, माइक्रोसॉफ्ट 365 A3 और A5। ये एक एनरोलमेंट वाला है जिसमें हम जो है बच्चों को, कितने भी आपकी क्लास से बच्चे, उन सबको एनरोल कर सकते हैं, और उनकी क्लास में हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, होमवर्क भी दे सकते हैं, और तमाम काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा अंजुमन इस्लाम जो है वो अभी चंद दिनों में ही मुमकिन है कि हम सब साथ में मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करें। तो इस तरह के बहुत सारे काम हमारे स्कूल में होते हैं, और हमारे बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको, अगर उनके पास एंड्रॉइड नहीं है तो हम क्या करें, उसके बारे में भी हमारी प्रिंसिपल जो है वो अक्सर बेशतर हमारी मीटिंग्स लेते हैं और हमारी को अहमियत देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्कूल ये काम कर रहा है, और हम बच्चों को ये चाहते हैं एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, बच्चों के पास किसी भी तरह से बुक्स पहुंचाए, क्योंकि पीडीएफ तो हमने अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप तो हमारी पहली जमात से लेकर 12वीं तक बन चुका है। ये
तकरीबन 3 से 4 साल से हमारे काम चल रहा है। ये हमारे लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे लिए आम बात है, लेकिन बच्चों के पास किताबें कैसी पहुंचाई जाए, क्योंकि आज भी 10th की बच्चियां जो है वो बुक्स के लिए स्टॉल पे जा रही है, बुक्स नहीं मिल रही। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बात आप जरूर पहुंचाइए हुकूमत तक कि कम से कम बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडीज के लिए बुक्स तो मुहैया करवा दें, क्योंकि एक घर में एक एंड्रॉइड से किताबें पढ़ना बच्चों की आंखों पर फर्क पड़ रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों तक बुक जरूर पहुंचा दीजिए, और मुख्तलिफ जो है यूट्यूब से भी हम बच्चे बहुत सी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। हम खुद करते हैं, हमारे टीचर्स खुद करते हैं, हमारे साथी खुद डालते हैं, और हम लोग बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के रखा हम लोगों ने। तो भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिससे आप अपने बच्चों से बात नहीं करते या उनको मैसेज नहीं देते। ठीक है, हमारे इस तरह से बच्चों को कोविड के दौरान हमारी भी एक शफकत है, मोहब्बत है जो हम अपने देते आ रहे हैं, और ये सब हमारा जो अदारा अंजुमन इस्लाम जो है वो हमें बाकायदा एक वेबिनार के जरिए बाकायदा हमको सिखाता रहता है। हम बहुत शुक्रगुजार है अपने अंजुमन इस्लाम के, अपने प्रिंसिपल के। मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ सर, और मेरी जो एक आपकी गुजारिश है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। और जो मैंने बताया आपको यूट्यूब चैनल आप खुद अपने स्कूल का भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा MS 365 ये माइक्रोसॉफ्ट का एक जो है ऐप है या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए भी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बसवा कल्याण से अमजद रिसोर्स पर्सन हूँ। उम्मीद कि आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। मैं हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बल्कि पूरा डिवीजन लेवल पे एक इनोवेटिव कदम उठाया गया है उर्दू और सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। तो हो रहा ये है उसमें कि जो 9th के बच्चे हैं जो 10th में जा चुके हैं तो उनके लिए रोज़ाना क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप और जूम ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऐप के ज़रिए से खुद हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए 9+ जो 10th में गए हैं उनके लिए क्लासेस चल रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बसवा कल्याण में जो तालुका के बच्चे हैं उर्दू मीडियम के जो 9th पास है वो 243 है हमारे पास। तो 243 में रोजाना की अटेंडेंस 50 है। तो एक और जो चीज़ हमारी फाइंडिंग है वो ये है कि रूरल एरियाज में बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि वो अगर उनके घरों में मोबाइल हैं तो या तो माँ बाप के हैं, भाइयों के हैं, तो वो अपने काम काज वगैरह की वजह से वो इनको दे नहीं पा रहे हैं। तो या तो इस लिहाज से ये एक तजुर्बा भी हुआ है। तो शायद इससे भी कुछ समझ में हमारे लिए आ सकता है कि एक और जो दिक्कत है वो यही हो रही है रूरल एरियाज में गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स के बच्चों में, कि जहाँ 243 के आउट ऑफ सिर्फ 20, 30, 40, 50 बच्चों का अटेंडेंस एवरेज हमें मिल रहा है। तो ये एक हमने कोशिश की थी, गवर्नमेंट से भी कोशिश हुई थी, लेकिन ये भी एक मसला रहा है। अब ये पता नहीं जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। इवन उसमें शहर के भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज बसवा कल्याण है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन उनका भी यही सेम मसला बताया गया है। जबकि सिटी में भी ये मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि हर बच्चे का अपना एक ज़ाती फ़ोन तो होता नहीं, अब उसका बहुत बड़ा रोल भी होता है, लेकिन पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पे है, तो मुमकिन है कि हमारी आगे की स्ट्रेटेजी के लिए शायद हो सकता है। और बात और बताना चाहता था यहाँ के कि हमारे पास गुफ्तगू से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पे उर्दू में बहुत सारा कंटेंट जनरेट करके रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे कंटेंट को एक ही जगह पे अवेलेबल करवाया जाए या एक ही ग्रुप में हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, तो हम थ्रू आउट इंडिया बहुत सारा काम अंजाम दे सकते हैं ऑनलाइन के ज़रिए से। तो जैसे एक बात ये हमारी बहन ने रखा है कि बच्चों को हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये एक बड़ा मसला भी है। लॉकडाउन में भी ऐसा है कि अब हमारे पास हमारे स्टूडेंट जो है प्रीवियस पहले वाले स्टूडेंट्स के नोटबुक्स रीडर्स को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जगह पे शायद मुमकिन
नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर हमारा इस तरह से प्लेटफॉर्म, जिस तरह से टीचिंग उर्दू में, मैं मुबारकबाद दूंगा टीम को कि बहुत अच्छे तरीके से एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म उर्दू के लिए बनाया है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करके इस पे मेहनत करेंगे तो बिल्कुल एक नेशनल लेवल पे उर्दू का एक बहुत बड़ा काम भी होगा, बहुत बड़ी खिदमत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अब्दुल्ला नादिर से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अब्दुल्ला साहब बोलिए। हाँ जी, मैं शेख अब्दुल्ला नादिर से बात कर रहा हूँ। और अभी अल्ताफ साहब तो बसु कल्याण के हैं, तैयब सर, इरशाद सर, ये तमाम बातों से ये बात मालूम हो रही है कि जो तालुका प्लेस के जो बच्चे हैं और गरीब जो तबके के जो बच्चे हैं, वो जो है ये जो हमारे जदीद जो वसाइल हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले जो है उन बच्चों तक पहुंचने की जरूरत है कि हम उनको किस तरीके से मोबाइल या टैब जो है उनको फराहम कर सकते हैं। इस पर हमको जो है समाज के जो मुख्तलिफ जो टूल्स हैं, मतलब जैसा समाज के जो दिगर इदारे हैं और समाज के जो दिगर तबकात हैं उनको भी इसमें जो है शामिल होना चाहिए। सिर्फ टीचर और तालीमी इदारे ही जो है बच्चों को जो है तालीम मुकम्मल तौर पे आज के हालात में दे नहीं सकते। इस वजह से समाज में बेदारी पैदा की जाए और समाज का हर तबका इसमें जो है तो शामिल करने की हमको कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये तमाम जो जदीद वसाइल हैं, ये जदीद वसाइल का इस्तेमाल आम तौर पे ज़हीन बच्चे और बेदार पेरेंट्स और जिनके पास वसाइल है वही कर पा रहे हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा आइंदा भी क्यों तो ये काम, इससे तमाम चीजें काम आने वाली है, तो हमको ऐसे फलाही इदारे या तंजीमें या जमातें या ग्रुप्स या समाज के वो तबकात जो गरीब अवाम तक मतलब तमाम चीजें फराहम करने के लिए उनको जो है तवज्जो देने की जरूरत है। कि जैसा मिसाल के तौर पर आज हम जो किट्स तकसीम किए हैं कोविड के अंदर, जो बीमारी के वबा में बहुत सारे अनाज के ग़िज़ाएं फराहम किए हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भी बच्चों को जो है टैब जो है फराहम करने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि समाज इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा, लेकिन हम उनको बताना चाहिए कि ये भी हमारी वक्त की जरूरत है। जो रिक्शे वाला है, मजदूर तबका है, तो ये तबका है, ये तमाम चीजें, ये टैब वगैरह वो खरीद नहीं सकता। तो हमको जो है इस जानने भी जो है तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ टीचर्स और तालीम इदारे ही आज के जो है तालीम के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। तमाम जो तबकात हैं, तमाम जो इदारे हैं, जो दिगर तमाम जो टूल्स हैं, उनको भी हम साथ में लेकर जो है इसमें काम करने की जरूरत है। ये अहमद, आपने हैंड रेज किया है, तो आप बात करना चाहेंगे? आमिर जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना कहना चाह रहा था कि हम लोग को बातचीत से ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं और बहुत बड़ा मतलब टारगेट अपना हदफ बनाना चाह रहे हैं, तो शायद हम लोग को मायूसी होगी। अगर हम लोग थोड़ा शॉर्ट हमारा सिलेबस और पढ़ाई और सारी चीजों को थोड़ा महदूद कर देंगे। अभी फिलवक्त ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये काम हो रहा है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं कि हम लोग हर हर वक्त जो है हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। तो हम लोग जो सोल्यूशन मेरे ख्याल से जो आ रहे हैं, मेरी उस पर थोड़ी सी राय ये है कि हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से 2-2.5 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए जो मसाइल हमारे बच्चों के हैं वो किस तरह से हल हो, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके हम लोग सोल्यूशन निकाल सकेंगे। अगर हम लोग बड़े पैमाने पे परमानेंट ऑनलाइन उर्दू में पढ़ाई कैसी हो उस पर बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा, स्कोप भी बड़ा होगा और फिर सोल्यूशन निकालने के लिए भी मेरे ख्याल से तकलीफ होगी। जी और कोई कुछ बोलना चाहते? तारापुर वाला, आपने हैंड रेज किया है, आप बात करेंगे?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकली इसको सोचे ना, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक के हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं मैं प्रैक्टिकली इसको करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 9th और 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस पर खास करके, जैसा अभी आमिर सर ने कहा कि हमको एक सिलेबस को महदूद करना है। 5th to 8th तक का सिलेबस ऐसा है कि हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म चलाते हैं, लेकिन 9th और 10th और 11th 12th का ऐसा है कि हमको एक पर्टिकुलर सिलेबस पर आना है। क्यों ना हम, कल भी मेरी बात हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात हुई है कि हम 10th का सिलेबस एक महदूद करके हम अपने टीचर्स तक पहुंचाएं और वही उसी पर वो टीचर्स करें। अब टीचर्स इतनी मेहनत करके 10th में पढ़ा रहे, पता चला कि उसमें से वो लेसन ही उन लोग ने ओमिट कर दिया, तो काफी चीजें ये होगी। सबसे पहले तो हमको एक महदूद सिलेबस पर ही जाना है और उसी पर हम अपने बच्चों को लेकर जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी बात ये कि जैसे हाशमिया स्कूल के प्रिंसिपल है रिजवान सर, उन्होंने मैथ्स का क्लासेस शुरू किया है टेलीग्राम पर, हम मैक्सिमम बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं। आरिफ सर हैं जो मालेगांव वगैरह के शायद हैं, वो साइंस का बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं। इसी तरह से मैंने अपने इसमें हिस्ट्री और उर्दू के लिए मेरी टीचर्स को तैयार करने के लिए कहा है और काफी वो लोग भी शुरू हो गए हैं वो काम करने। तो क्यों ना हम मिलकर अपने ही इस तरह से ग्रुप बनाएं और एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे अगर हमारे पास हिस्ट्री में बहुत अच्छा मटेरियल है और हमारे टीचर्स अच्छे हैं, या आमिर सर की स्कूल के अच्छे हैं या फारूक स्कूल के, तो उनका एक ग्रुप लेकर एक हिस्ट्री मैंने अपने जिम्मे ले लिया है, समझो उर्दू आमिर सर ने ले लिया है, फारूक स्कूल ने कोई, इस तरह से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं एक दूसरे से। सिर्फ हम अपने ग्रुप में अपने बच्चों को, अपने 40 बच्चों को 50 बच्चों को पढ़ाना, मैं समझती हूँ उससे ज्यादातर हम इस तरह से मेहनत करें तो बैलेंस हो जाएगा। और रही बात बुक्स की, तो वो जरूरी है, जैसे आमिर सर ने बहुत अच्छी एक बात कही जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा मैं भी वही करूं कि एक टाइम टेबल, जैसा हमने 3 पीरियड आज 5th स्टैंडर्ड को लिए, सुबह 9 से 11, तो 11 के बाद हम लेंगे, क्योंकि हमने एक सर्वे किया तो मैंने देखा 60% बच्चों के पास, हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है। 10th में मेरे पास 300 बच्चे हैं जिसमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। हमारा पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, ये बच्चों का क्या, उनका सोचना है। हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि ये हमने सिर्फ बच्चों को एंगेज करके रखा है कि बच्चा जो है हमारे हाथ से निकले नहीं, बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चा किसी भी तरह से एंगेज रहे। और ये एंगेजमेंट की वजह से पेरेंट्स के मैसेज भी हमारे पास आए कि कम से कम इसकी वजह से हमारा बच्चा घर में रह रहा है, आप इसको बंद मत कीजिए, आप शुरू रखिए। तो एंगेजमेंट है ये बच्चों का जो हमने करके रखा है। रही बात हमको बच्चों को 10th 11th 12th वालों को ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए हमको जो है पर्टिकुलर एक सिलेबस पे ध्यान देना है, जो हमको कैसे भी करके मिनिस्टर्स लेवल पर हमको फोर्स करके उनको ये कि पहले आप अपना सोचते रहिए कि कब क्या करना है क्या नहीं। पहली मीटिंग ये होगी कि 10th में कितना पोर्शन हमको लेना है। आप समझिए कि अगस्त के बाद ही स्कूल स्टार्ट होने वाला है, अगस्त तक के हमारा ये जाएगा, तो हमको कितना सिलेबस चाहिए उस पर हमको मेहनत करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ आमिर सर उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो आमिर सर से रिक्वेस्ट है कि आमिर सर इस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि एक पर्टिकुलर सिलेबस हमारे पास आ जाए और टीचर्स जो है उसी के मुताबिक पढ़ाना शुरू कर दें। थैंक यू। जी शुक्रिया। ये अहमद आपने हैंड रेज किया है, आप बात करेंगे? अच्छा, अलीना शेख। जी मैं बोलूं? हेलो। हाँ बोलिए अहमद साहब। जी जी, मैं शरीफ खान बोल रहा हूँ जालना से। मेरी पहले भी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच में ही रोक दिया गया था। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है अहमद सर, बोलिए। जी जी, अहमद नहीं, मैं शरीफ खान बोल रहा हूँ। हाँ शरीफ सर है क्या मेरी? हाँ जी जी, शरीफ खान बोल रहा हूँ जालना से। जी सर बोलिए। देखिए अब हमारे बहन ने अभी जो बताया कि भाई 60-80% बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो ये तो मेट्रो सिटीज में है, बड़े बड़े शहरों में है ये ऐसा इस तरह का, लेकिन देहात में ग्रामीण विभाग में है तो जो बहुत एंड्रॉइड फोन की क्या बात, सादे मोबाइल भी नहीं है बच्चों के पास।
तो ऐसी सूरत में अभी इस मीटिंग से कबल जब मेरी अब्दुल रहीम साहब से बात हुई थी इसके मुतालिक, तो हमारे अभी मैंने इससे कबल एक वो देखा, GR देखा, एक सर्कुलर देखा। हमारे जालना जिला के शिक्षण अधिकारी ने एक सर्कुलर निकाला कि जिन लोगों के पास ऐसे गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो एक्स्ट्रा मोबाइल्स है, जो डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसे मोबाइल डोनेट करके वो जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है उन बच्चों को वो दे और उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको उन मोबाइल पर मटेरियल प्रोवाइड करे। और दूसरी बात ये मुझे कहना थी कि कंटेंट की जो बात है कि हमारे पास मवाद के ताल्लुक से जो है, तो मवाद बहुत सारा है हमारे पास। बहुत सारे स्कूल के पूरे असातिज़ा के पास मवाद है और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनके पूरे असातिज़ा बिल्कुल इससे ऑनलाइन एजुकेशन से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नावाकिफ है। तो ये जो खला है, इस खला को पूर्ण करने के लिए अब हमको ये करना होगा कि जो ऐसे स्कूल है या ऐसे असातिज़ा है उनको वो मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर केंद्र के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट और तालुका, ज़िला, इस तरह से इसको डिवाइडेशन करके ग्रुप बनाया जाए और स्कूल वाइज, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाया जाए तो आसानी पैदा होंगे इसमें। तो जो लोग इसमें टेक्निकल तौर पर जो तैयार लोग हैं जो इस तरह का काम कर सकते, वैसे लोगों की मदद लेकर हम 20, 40, 50 स्कूल का एक ग्रुप बनाए, उसमें सब्जेक्ट वाइज ग्रुप करके उनको हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकते। तो जो लोग काबिल लोग हैं, टेक्निकल से वाकिफ लोग हैं, ऐसे लोगों से मदद लेकर हम उस काम को आसानी से कर सकते। बस यही कहना है। जज़ाकल्लाह आप मौका देने के लिए। जी शुक्रिया। हाँ खुर्शीद सर, एक मिनट, मैं शरीफ खान सर ने जो बताया है अभी बात, मैं मुख्तसर से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शरीफ सर ने बहुत अच्छा बताए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 3 महीने के लिए समझो हम एक चुनिंदा एक मवाद तैयार करें, क्योंकि हमारे पास में जो है 3 महीने का ऐसा है कि 3 महीने का प्लानिंग अगर सही तरीके से होती है तो उसका ही कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा, वरना हम पूरे सिलेबस के ऊपर अगर गौर करेंगे सर तो हमको जो है उसके नतायज वो नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने के हिसाब से मटेरियल तैयार करें, मवाद तैयार करें और वो 3 महीने की प्लानिंग रखे हमारे पास में, तो हमको कुछ उसके नतायज मिलेंगे सर। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल रहमान शेख बात कर रहा हूँ। जी आ रही है, बोलिए। जी मैं सदर मुदर्रिस पटेल हाई स्कूल मुमरा, जिला थाने, महाराष्ट्र। अब्दुल रहमान शेख आपने हैंड रेज किया है, आप बात करें। जी मैं ही बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान शेख। जी मेरी आवाज आ रही है अहमद सर? जी आ रही है। जी मैं बहुत हद तक हमारे प्रिंसिपल शमा तारपरवाला से बहुत हद तक सहमत हूँ और उन्होंने जो बातें शेयर की हमसे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी जालना की बात हो रही थी कि बच्चों के पास मोबाइल एंड्रॉयड फोन की बजाय सादा फोन भी नहीं है, तो हालात ऐसे ही हैं हर तरफ। कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 20%, कहीं 10% बच्चों के पास एंड्रॉयड वर्जन फोन्स हैं। और अभी किसी साहब ने 3 महीने की मनसूबाबंदी की बात की है। ये बिल्कुल मुनासिब मुझे लगता है, मेरी राय, कि हम 3 महीने की मनसूबाबंदी करें। और 3 महीने की मनसूबाबंदी का मतलब है कि हम एक निसाब मुख्तस कर दें, निसाब खुद बना लेंगे 3 महीने के लिए क्या करना है हमको। इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए ऐसे असातिज़ा का इंतखाब करें जो हर जमात के लिए, हर मजमून के लिए इस तरह के वीडियो लेसन्स तैयार करें जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम के हों, और इसका एक बड़ा ग्रुप तैयार करते हुए इसको हम शेयर करें, क्योंकि हर स्कूल में इतने काबिल टीचर्स होते नहीं हैं, मेरी राय है। तो ऐसे असातिज़ा जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं और अच्छी तरह से लेसन तैयार करते हैं, खास तौर से हम बड़ी जमातों से शुरू करें फिलहाल। तो ये टीचिंग उर्दू जो प्लेटफॉर्म बना है
इसको हम मजबूती अता कर सकेंगे इस तरह से। मेरी ये राय है तमाम मज़ामीन के लिए। और हो सकता है कि एक सब्जेक्ट जैसा साइंस हम लें तो उन असबाक पर भी गौर किया जा सकता है और असातिज़ा को ज्वाइन किया जा सकता है। साइंस टीचर्स का एक ग्रुप बनाकर, मैथ्स टीचर का एक ग्रुप बनाकर एक पूरी तरह से एक मनसूबाबंद निसाब सिलेबस हम इन 3 महीनों के लिए तैयार कर सकते हैं। मुझे ये मुनासिब लग रहा है। मेरी बात खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जैसा कि 2 से 3 का वक्त दिया गया था और 3 बज चुके हैं, बहुत सारे टीचर्स के दूसरे एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, तो हम अपनी बात को मुख्तसर करते हैं यहाँ पे। और हमारे साथी मुजाहिदुल इस्लाम यहाँ पे हैं, वो एक बार हमारा जो टीचिंग उर्दू वेबसाइट है उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग एक बार उसे देख लें। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं और बहुत हम कहेंगे कि इंटरेस्टिंग सजेशंस भी आए हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि हमारे भी जो हमारा जो दायरा है वो भी बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे टीचिंग उर्दू में सारे वॉलंटियर्स हैं। हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पे करते हैं। आप लोगों का अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह जितने भी सजेशंस आए हैं उस पर हम लोग एक एक करके काम करेंगे। और इसके बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़कर, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं, हम लोग पर्सनली और उस ग्रुप में भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत जल्द ही सर आपका तारुफ दीजिए सर, खुर्शीद सर। जी मैं कोलकाता से हूँ और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में रिसोर्स पर्सन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जी सर, शुक्रिया शुक्रिया सर जी। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे मुजाहिद भाई से कि हाँ। वो स्क्रीन शेयर करें, फिर हम लोग बात को आगे करेंगे। मैं मुजाहिद हूँ और मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ और मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। तो मैं एक्चुअली मैं बीच में कट गया था, तो मुझे होस्ट परमिशन देंगे जो होस्ट हैं यहाँ पे, या शेयर स्क्रीन का ऑप्शन एनेबल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी मुजाहिद भाई, आपको एक्सेस शायद मिला है, देखिए। हाँ तो ये जो हमें 3-4 साल पहले बनाया था, हम लोग जो टीचिंग उर्दू ग्रुप में वॉलंटियर्स हैं, तो आप कोशिश ये है कि वहाँ मौजूद है, तो ये कोशिश है कि हम लोग जो है वो आज जो तरीका है सीखने का और आज जिस तरह के वसाइल, तालीमी वसाइल बच्चे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग इस वेबसाइट पर ले आए। तो जो अभी डिस्कशन हुआ है उसमें मतलब कि बहुत कुछ जो है वो रेलेवेंट इस सेंस में हो सकती है कि आप सारे जो टीचर्स हैं उनको कुछ उन्होंने कोई मवाद तैयार किया, तालीमी रिसोर्स, तालीमी वसाइल जो है, तो उसको आप जो है वो शेयर करना चाहते हैं वाइडली, या आप जो है वो तो ये चीज़ जो है वो उसके लिए इस सिचुएशन में जो आप लोगों ने कुछ वीडियो बनाया है, वर्कशीट बनाया है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाया, तो वो यहाँ डाल सकते हैं। तो ये इससे फ़ायदा ये होगा कि टीचिंग कम्युनिटी जो है उर्दू की, दूसरी चीज़ ये कि देख सकती है, दूसरी चीज़ के हम लोगों ने काफ़ी सारे मटेरियल्स जो है वो तालीमी एजुकेशनल रिसोर्सेज इसको उर्दू में यहाँ पे डाल रखा है। बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन ये एक कोशिश है जिसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि वो सारे बच्चे जहाँ तक ये डिजिटल चीज़ें नहीं पहुँच सकती, उन तक कैसे पहुँचाया जाए, तो ये भी जो है वो उस तरीके से हो सकता है कि भाई टीचर्स जो हैं उनके पास अगर है, उनको मटेरियल्स मिल जाता है,
तो वो किस तरीके से उसको ऐसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं जहाँ जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या जिनके पास एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इसका प्रिंट आउट लेके उन तक पहुंचा सकते हैं एट प्रेजेंट, जो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, तो मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा मतलब जैसे ये होम पेज आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने मतलब कि रिसोर्सेज डाल रखे हैं और इसको आप मतलब फिल्टर जैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि एक ये है कि आज के दौर में बच्चे जो है वो सीख रहे हैं सिर्फ प्रिंटेड चीज़ों से नहीं सीख रहे हैं, बल्कि वीडियो और इमेजेस और गेम्स और इंटरैक्टिव चीज़ें और जिसको हम लोग मल्टी मॉडल कहते हैं उसके थ्रू सीख रहे हैं। तो हमने मतलब की कोशिश की है कि हर तरह के रिसोर्स यहाँ पे डाल दें। तो आप देखेंगे कि जैसे कि पहली चीज़ जो है वो ये कि जो मवाद ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको हम लोग एक जगह क्यूरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स दिखेंगे जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उर्दू में जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन उर्दू, साइंस की दुनिया मैगजीन, बुक बॉक्स उर्दू एनिमेटेड वीडियोस, उर्दू फेरी टेल्स, सेंटर फॉर ये जैसे वीडियो रिसोर्स ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स इन उर्दू, खान एकेडमी के में आपको बहुत सारे वीडियोस जो है वो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे। जो बच्चों को अगर मिल जाए डायरेक्टली तो वो उसको पढ़ सकते हैं और फिर बाद में आप उनके साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। उर्दू में कहानी की किताबें बहुत सारी अवेलेबल है, आज के दौर में प्रथम बुक्स ने मुहैया कर रखी है स्टोरी वीवर पे। तो इस तरीके से इस लिंक पे आपको ये हमने क्यूरेट किया। तो अगर आपको भी कुछ पता है कि कोई ऐसा वेबसाइट है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे अच्छे रिसोर्स हैं, अच्छे तालीमी वसाइल है उर्दू में, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हमने फिर उसको क्लासीफाई कर रखा है। जैसे रियाजी है तो रियाजी में जो रिसोर्सेज जो मटेरियल्स हैं फिलहाल अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो उसी तरीके से आप जैसे कि आप ये जैसे ये खान अकादमी का वीडियो है तो जैसे इसको हम लोग यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि रियाजी से क्यों पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड हैं, तो ये टीचर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। उसी तरह आप देखें कि ज़बान लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं। हमारी मतलब कि कुछ कोशिश ऐसी रही है कि जो मटेरियल्स इंग्लिश में अवेलेबल है उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी करें हम। तो इसमें कुछ बहुत सारे आर्टिकल जो कि अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी के कुछ मैगजीन्स निकलते हैं उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तो आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से साइंस में कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल है, वीडियो है, बच्चे एक्टिविटी करके बना करके कैसे साइंस सीखते ये है। तो ये एक मतलब कि एक तरह से एक आपको ओवरव्यू मिल सकता है कि किस तरीके से। तो उसी तरह आप देखें ये सिमुलेशन है, तो आजकल जैसे बच्चे गेम खेल करके सीखते हैं, उसी तरह सिमुलेट करके चीज़ों को सीख सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसी तरीके से आप देखें कि तालीम यानी पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड जो बहसें हैं उसको हमने यहाँ डाल रखा है। जैसे किस तरीके के आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, किस तरह के तालीमी फ़लसफ़े पे आजकल बहस हो रही है जिसके तहत आपको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस पे कुछ रिसोर्सेज डाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि रिसोर्स डालते रहें। अब अगर हम रिच बना लें इसको तो इस तरह के सिचुएशन में एटलीस्ट इतना कहा जा सकता है कि टीचर्स को जो चाहिए मटेरियल वो उनको आसानी से यहाँ मिल सकती है, या ऐसे टीचर जो कुछ बना रहे हैं इंटरेस्टिंग वो यहाँ डाल सकते हैं। तो शेयरिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म पॉसिबल है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है मैंने देने की कोशिश की। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है तो इसलिए बस इतना ही। भाई अब हेलो जी जी आ रही आवाज आपकी जी। हाँ, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिला है, आप चैट बॉक्स में देखेंगे लिंक शेयर किया है मोमिन भाई ने, आप उस लिंक के जरिए उसमें जुड़ सकते हैं। और यहाँ जो भी डिस्कशन हुए हैं आज उससे हम लोग कितना उस पर अमल कर पाएंगे, कितना अभी हमारे रीच से बाहर है, इन सब को लेकर फर्दर जो डिस्कशन का कंटिन्यूएशन है हम चैट में करेंगे और जल्दी खुर्शीद भाई एक क्विक मेरी तरफ से बात करना चाह रहा हूँ। अगर कोई उस लिंक के जरिए ग्रुप में ऐड नहीं हो सक रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाला हूँ।
जी मोमिन भाई, किसी आप लोग म्यूट कर लें, आवाज़ आ रही है जिससे डिस्टर्बेंस। सलमान भाई हैं क्या, या उनको कुछ कहना था? हेलो। हाँ खुर्शीद भाई आप बात करें, थोड़ा लाउडली बात करें, आपकी आवाज। जी, तो हम पूछ रहे सलमान भाई हैं क्या ग्रुप में, उनको कुछ बात रखनी थी अपनी। हेलो, मैं आमिर सर बोल रहा था। मैं इससे इतना कहना चाहूंगा कि उर्दू के जो हमारे जो भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो लोगों से गुजारिश कीजिए कि वो कंसेप्ट बेस्ड मतलब कंटेंट बनाने की कोशिश करें, ना कि सिलेबस बेस्ड, ताकि वो, चूंकि ये ऑल इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म होगा, तो अगर हम लोग सिलेबस बेस्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद स्टेट वाइज वो डिफर करेगा। तो अगर तसव्वुरात पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे कंटेंट, तो मेरे ख्याल से सारे लोगों के लिए वो कारआमद होगा। और आपके वेबसाइट को इंशाल्लाह हम लोग गो थ्रू करते हैं। और दूसरे, हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट का जो हल्का है वो बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा किसी रियासत में अगर उर्दू स्कूलें हैं, उर्दू का तालीमी नज्म है, तो हमारे स्टेट में ही है। इंशाल्लाह इसको आपके इस प्लेटफॉर्म को हमारे स्टेट में हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं उन तक फॉरवर्ड करेंगे, और एक फीडबैक की शक्ल में इंशाल्लाह कुछ चीजें आपको मशवरे के तौर पर जरूर देंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आप हाँ सबसे हमारी कोशिश तो यही है कि हम जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड और तो आइडिया बेस्ड जो रिसोर्सेज बनाएं, और वो मतलब कि जाहिर है टीचर्स खुद सिलेबस से मैप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मतलब कि एक तरह का कम्युनिटी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया, हम ये कह सकते हैं हमने बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अभी जितने सारे टीचर्स इस मीटिंग में मौजूद हैं इसको ओन करने लगे, और मतलब कि वो खुद जो है वो सोचे कि इसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, इम्प्रूव बना सकते हैं, और कैसे हम और बहुत सारे रिसोर्सेज में डाल सकते हैं और हर जगह स्प्रेड। जी, तो हम सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह इसके कंटिन्यूएशन में और भी वेबिनार्स और जो भी नीड अभी निकल कर आई है सामने, उसको सामने रखते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी हेलो हेलो जी, तहूर अनवर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। ये बोलना ये था, असल हम तो टाइमिंग में कंफ्यूज कर गए। हमको लगा 2-3, हमको लगा 3 बजे से है, लेकिन हमारा मीटिंग खत्म है। ये पूछनी थी सिर्फ ये बात कि वो जो उसमें जो कंटेंट है, तो वो क्या हम लोग जैसे और भी टीचर अगर कोई उस तरह से पढ़ाना चाहे तो उसको वो सब चीज उस लिंक पर मौजूद मिल जाएगा, अवेलेबल? जी बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ वो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड। चूँकि हम लोग यहाँ कांटेक्ट में जो टीचर लोग हैं, मतलब तो उन लोगों को अगर हम लोग वो लिंक देते, उस लिंक को अगर फॉरवर्ड किया जाए या उन लोगों को दिया जाए तो वो वहीं से वो खुल जाएगा, वो वहां से वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप चूंकि थोड़ा लेट जुड़े हैं तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स में हमारा नंबर है। और भी सारे टीचर्स यहाँ जुड़े हुए थे 2 बजे से, तो हम ये सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसा फिर होगा आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक यहाँ चैट बॉक्स में दिया हुआ है। हम लोग आगे की डिस्कशंस वहीं पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम सेशंस को यहीं पे, इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, सलाम।